that I want to discuss with you is the methodology that we are going to follow in this batch. The most uncertain stage of UPSC, it is the prelims. And if you will be qualifying prelims, you will enter the predictable stage, which is the mains. And if you qualify the mains, you enter yet unpredictable stage, which is the interview. Definitely interview is also unpredictable, personality development test. And there itself, because there is interference, or you can say you will be facing few gentlemen wearing a coat or a decent dress. They will be taking your interview, and definitely you will maybe there will be ma'ams also. So they will be taking your interview on the basis of whatsoever they have learned throughout their lives. But even then, they have the limited time to judge you. And on the basis of their experience, it is generally said that they are going to take an impartial interview. But wherever human beings is involved, nothing is impartial. It is a myth. So, interview is not in your hand. Prelims, it can be in your hand, but yet it is unpredictable. And mains, it is in your hand. So, we have to devise a strategy like that. हमें इस तरह से करना होगा कि at least we should be certain about the prelims, so that at least we get a chance to express ourselves. And when will we getting the chance to express ourselves? When we will be preparing for the mains. But before entering into that, I had just given a poll whereby I have asked you to vote. And yes, many of you have voted. There were few votes where the student has mentioned that he or she is completely new to UPSC. So I was thinking of skipping a stage of explaining the stages of this examination, but it is needed because not everybody is conversant with the syllabus and all things. UPSC examination is conducted in 3 stages. Stage 1, it is the prelims. Prelims में होता क्या है कि they will be giving you the MCQs. And there itself you will have to make a choice. That is the objective type of question. You mark what is correct, else you get the negative marking also. At the prelims stage, let me share my screen with you. I hope you are able to see this. At the prelims stage, see, whenever you will be having the problem in seeing the screen or you are not able to listen to me, I am seeing the group also. So in the case, if you will be having any trouble, मेरी आवाज नहीं आ रही है या कोई भी दिक्कत हो रही है, आप उसी इंस्टेंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. So UPSC examination is conducted in 3 stages. Stage 1 determines who is going to stage 2. Stage 2 determines who is going to stage 3. So these 3 stages will determine your final selection. The marks of only stage 2 and stage 3 are counted for the final merit. Then stage 1, it is the prelims stage. It has 2 papers, the paper 1 and paper 2. You must be knowing. Paper 1 is about the GS. Paper 2 is about the CSET. Paper 1 will be only be evaluated when you will be qualifying in paper 2. So if you ignore paper 2 will ignore you. So you don't have to ignore paper 2, although this is not the part of our syllabus. But definitely we will be conducting few tests so that at least paper 2 remains within your control. But in the case
you have a trouble with CSAT, I would strongly advise you to go and visit the Civil Services with Nilesh channel and watch the video that I have posted for the CSAT. And good thing is that it is language friendly. I have added the subtitles in all the videos. There are 51 videos, so you won't be worrying about this mathematics portion at least. And for the CSAT, whatever strategy I have discussed, if you will be following that, in 95% of the cases, you will be doing the right answer. So anyways, let us discuss about paper 1. Now paper 1, it decides your cutoff. And it has the portions such as polity, environment, history, geography, economy, and definitely the last one is science and technology. So these 6 portions, they form the base of prelims, and these 6 portions form the significant portion of the stage 2 mains also. I will be showing you that. Now if you will be seeing the cutoff, I have included the cutoff till 2021, but definitely the cutoff is continuously declining from 2017. 77 तक जा रखा है. So इस साल it is expected, we do expect that this year the cutoff will increase definitely. Though, please understand that focusing totally upon the cutoff, that cutoff इतना ज़्यादा जाता है, टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है. Because whatever you will be knowing, you will be doing actually. तो आपको जितना आता है आप उतना करके आएंगे. And paper 1 will determine whether you will be entering the paper stage 2 or not. Basically, stage 1 will determine whether you will be entering the stage 2 or not. So I want that stage 1 should be prepared beforehand. Now, at this time, if you will see most of the mentors, they will be suggesting forget about the stage 1, prepare for the stage 2. मेंस की तैयारी कर लीजिए, आपके मेंस का वक्त है. लेकिन हम ऐसा बैच में नहीं करेंगे. हम क्यों नहीं करेंगे इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं. क्योंकि इफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस स्टेज टिल दिसंबर एंड यू विल थिंक लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम जनवरी, अल्टीमेटली होगा क्या? You will actually, when the exam will be coming nearby, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें. So you will want that you complete the things early, but उस चीज में आपका नुकसान हो जाएगा. और वो नुकसान आपका एक ही होगा. वो नुकसान आपका पता है क्या होगा? उस चीज में आपका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जब वो हाथ पैर फूलने लगते हैं ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता है, किताब साइड हो जाती है. आप लोग साथ अक्सर हो रखा होगा. In English, we call it examination fever. This is not the fever of TVF. TVF fever, nahi. Examination fever. So I want that I change the strategy this year, and I want that in the next 3 months, let us finish the prelims portion till October, like 15th October. Let us finish the prelims portion and then start the mains portion. Then we will have 2.5 months for mains here, and till February we will be taking the syllabus. And during that time, initially we will be giving full time to the prelims. During that time, after the prelims, we will be doing? We will be preparing for the mains wala portion till February, but ensuring that if you are studying for 12 hours, 4 hours you are actually devoting for the revision and practice of prelims stage. So prelims kabhi chhutega nahi. Prelims we will be giving it a prolonged time. So this will ensure a lot of revision and practice for you. By the time the February will be ending, you'd have revised and practiced the paper 1 or the prelims stage a lot number of times. So this will ensure at least that you are prepared properly for the prelims stage. और मेंस में थोड़ा बहुत ही कहीं कुछ कमी रह गई तो you will always have chance to improve and work upon it after the prelims stage. वो 80 दिन मिलते हैं जब आपको केवल मेंस के लिए पढ़ना है. And that is the reason I have changed this thing. Earlier I used to do we used to do the integrated study because that was actually
always advised, and I also believed in that. But somehow, seeing the unpredictability and seeing the unconventional things, I had to take the unconventional decision for the benefit of all. Because one thing is clear: howsoever you are strong in mains, if you don't qualify prelims, you are not going to write the mains. So let us take the prelims in our hand so that you will have at least the chance to improve the mains towards the mains stage. जब mains का time आएगा, 80 दिन आएगा, it is your batch whereby I will be assisting you. मैं आपको असिस्ट करूंगा कि आप मेंस क्वालिफाई कर पाए, और आप कर लेंगे, बिकॉज आपका मेंस का सिलेबस मैं ऑलरेडी खत्म करवा चुका हूं. So this is how we have planned this batch. So till 15th of October, we will be finishing this prelims wala stage. We will be putting everything to revision, and till February, we will be doing mains wala thing with a division of time between prelims and mains. If something would be left, that would be covered after prelims. और आपके पास sufficient time है. But one thing you will have to take into mind, that if we are doing something till September, we are doing only prelims. One thing you have to take your mind in your mind, that you will have to decide your optional. This is important. It should not happen that on 15th October you do not have any clue about your optional. Optional is important. So prepare for the prelims and prepare for the optional. Keep doing these things. If you will be strong enough for the optional towards the end of this October, nothing is going to stop you from the selection. Nothing. Because you are actually doing good. You are preparing better. You are having a better strategy than others. So decide your optional. I don't know whatsoever is your optional, but two optionals which are giving the constant result over these years are sociology and anthropology. It doesn't mean, neither I am insisting that you should take these two optionals. Decide the optional on the basis of your interest, though I personally do not believe in any kind of interest in the optional. Because पढ़ने में ही interest नहीं होता है लोगों का. But we know that without studying, we won't be getting the selection. So we do study. हम इसलिए पढ़ते हैं. So choose an optional which is having the smaller syllabus, which is easy and which is scoring and which is constantly producing a very good result. So in that sense, two optionals, they never have ditched. Geography is also a very good optional, no doubt in that. But only problem with this optional is that this is a big optional. So you will have to prepare, read a lot of things, and then you will have to produce it. But if you find yourself conversant with that, there is no problem, no issue in geography. But before deciding and finalizing the optional, check the results. See, it's as simple as that. Don't try to be an exception. Go with the flow. जिसमें marks आते हैं वो लिखेंगे. हम वो जोश में नहीं आएंगे कि भैया कोई नहीं कर पाया हम फोड़ देंगे जाके. Don't do that. Don't be heroic. Be practical. जिसमें marks आते हैं ये लूंगा इसको पढ़ के फोड़ दूंगा. That's it. So this is the thing that you have to do. You are starting the prelims portion with me, and you have to decide your optional. The two best optional I have told you. Geography is also a good optional. That is also scoring. That is also useful. And apart from that, if you have covered any other optional and you find yourself comfortable in that, you can continue with that optional. No harm in that. So this decision I am leaving upon you. But what I expect from you, finish the optional in the next 3-4 months. That will be required. So coming to the next stage. So then we have the mains stage. Now mains stage have 9 papers. 7 out of 9 papers are counted for merit. 2 are qualifying. These 2 papers are like she said, paper A and paper B. Here paper A is very easy because paper B is very easy because it is in English language. We read English generally. So आप ये वाला कर लेते हैं. But in paper A, many students fail each year. Few students, they write the mains, but they get disqualified in the qualifying paper, so their copy is not even checked. God knows if their copy would have been checked, they might have, you can say, surpassed the rank 1 also.
बट उनका कॉपी ही नहीं चेक हुआ फिर. सो नेवर एवर इग्नोर द क्वालिफाइंग पेपर्स, इट इज नीडेड. So this is very important. Then the papers which are counted for merit is this paper one, that is essay, 250 marks. Shortest syllabus, yet most ignored thing. Even it does not have any apart from that few things that are written, you have to write in concise and systematic, etc., etc. Then you have paper one, Indian history, culture, history and geography of the world and society. Then you have paper three. You call it GS1, you call it GS2. Then geography, constitution, polity, social justice and international relation. Then you have the GS3, technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management. Then you have paper 4, ethics, integrity and aptitude. Then you have paper 6 and 7. This is related to your optional. And then total marks is out of 750. The marks are given by the UPSC. And what is the marks that people get? See, if you will go to till 2021, the highest marks that they have got is 809. 50% के आसपास, उससे भी कम. So if you get 50% in mains, God bless you. You are going to be rank 1. But फिर भी नहीं आते. क्यों नहीं आते? I will be discussing. Because each year, a lot of students, they do the mistakes. Then there is the stage 3, which is the personality test. It is of 275 marks. Let us not talk about this currently. Let us restrict ourselves to stage 1 and stage 2. Stage 3 के बारे में आएगा तब बात करेंगे. स्टेज 3 कई सारे बच्चे ना स्टेज 3 के मिले परेशान हो जाते हैं. Don't be tensed with stage 3. Just know that your final stage, your final marks or merit is made upon the addition of the marks of stage 2 and stage 3. But what is in your control is stage 2. So you have to give your best in stage 2. Now, few commonly accepted facts and mostly agree that you have to be good in ethics, essay and optional. And it is true that if you get good score, because it is very easy to get essay, it is very easy to get nearly 130 marks. Same applies for ethics. They have the least syllabus, yet they are the most ignored portion. And in the optional, if you manage it well, then in the limited time, you can easily get nearly 300 marks. GS 1 to 3 combined with a very bigger syllabus than the optional. हम उसको दिन भर टाइम देते रहते हैं, उसमें 300 नहीं आते, लेकिन आप अकेला आपको ऑप्शनल 300 से 350 दे सकते हैं. Provided you handle it well. So it makes sure that you, whenever you are going to give the optional, you are going to get 300 plus, nothing less than that. That is important. But for that, you will have to confine yourself within the boundary for this and also for GS 1 to 3. See, till now, 2017 topper, Anudeep Sethi, he got 1126 marks. It is the maximum marks till now. 55.60 marks. 55.60%. That's it. You are topper hai. 50% आ गए, आप टॉपर में रहेंगे ही रहेंगे. So this is something that I wanted to discuss. Now, if it is very easy, then why not each one of us get that? हर कोई क्यों नहीं ला पाता? Very simple. These are the reasons. You know the reasons. Let me repeat it for you. There is loads of misguidance. There is loads of misguidance. There are many people who do not have an understanding for this UPSC, but they have a lot of bigger channels. They are continuously guiding and misguiding, guiding, misguiding. They haven't even qualified our prelims, but they are guiding. ठीक है, कोई बात नहीं. I do not say that not each person who haven't qualified prelims will misguide only, but there are a lot who misguide. There are a lot person who actually misguide, and they feed upon your uncertainty. एक example बताता हूँ. I won't be taking the name, but there is one famous video how I predicted 69 to 79 questions from 2022 paper for 2023. Predict कर दिए. हर साल prediction के videos आ जाते हैं. और बच्चों को लगता है, बच्चों को डर लगता है, and they start following them. Prediction से selection नहीं होता. और इनके प्रिडिक्शन अक्सर मैं बताता हूं कब आते हैं. इनके प्रिडिक्शन हमेशा तब आते हैं जब पेपर हो चुका होता है. उसके बाद इंटरलिंकिंग तो कोई भी करके दिखा देगा. ये देखो हमारे वाले से
पेपर से पहले प्रिडिक्ट करके दे दिए होते ना, सभी का सिलेक्शन करवा दिए होते। नहीं होता ऐसा। सो यू विल ऑलवेज फाइंड अ लॉट ऑफ क्लेम्स from a lot of persons. Don't be a prey or victim of misguidance. You should apply your mind and don't be a blind follower of anyone, including me, definitely. अगर मेरी बातें सही लगेंगी तभी फॉलो करना, नहीं तो क्यों फॉलो करना अगर मेरे को बातें सही नहीं लग रही है। बट मेनी स्टूडेंट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस ट्रिक्स, दे आर सो गलिबल कि वो किसी को भी फॉलो करने लगते हैं। वो नहीं करना है, अपने आप को मिसगाइड नहीं रहने देना है। सी फॉर द सिलेक्शन योर एफर्ट इज नेसेसरी, बट फॉर दिस सिलेक्शन योर राइट गाइडेंस इज ऑल्सो नेसेसरी। वरना ये दीवार है ना, इसको मैं कितना भी धक्का दे दूं हिलेगी नहीं। तो आपको धक्का नहीं देना है, आपको दीवार को नहीं धक्का देना। अगर धक्का देना भी होगा तो ठेले को दूंगा, एक धक्का दूंगा आगे बढ़ जाएगा। कार को भी धक्का दे दूंगा तो हिल जाएगी, ये नहीं हिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए आपको अपना फोर्स लगाना कहां पे है, फर्स्ट थिंग। Second thing, don't run behind too much material. You need to draw a boundary. Because if you don't draw the boundary, it is going to be the sure recipe of disaster. You are not going to get selected if you will be reading a lot and lot of material for each and every material. Because for each topic, there is definitely a lot of material, but you can't read all. आप सब नहीं पढ़ सकते, आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सब्जेक्ट्स लिमिटेड रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एक क्वेश्चन के लिए तो आप उसको कभी रिवाइज प्रैक्टिस कर ही नहीं पाए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ रेयर क्वालिटी। कंसिस्टेंसी इज अ रेयर क्वालिटी। Not everybody is consistent. Each year it happens in my batch, it happens in all the batches in institutes also. There are many who join, but there are very few who are actually consistent throughout the year. हल्का सा प्रेशर आता है छोड़ देते हैं, क्यों? ये नहीं करना। Don't be inconsistent with the targets, because the moment you will become inconsistent with the target, UPSC dream of yours will become inconsistent for you. आपका सपना आपके लिए इनकंसिस्टेंसी का आपको रिजल्ट दे देगा। सीधी सी बात है, इट्स एज लाइक दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट। जस्ट थिंक लाइक दिस, फॉर फूड कैन यू बी इनकंसिस्टेंट फॉर अ डे? एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो हालत खराब हो जाएगा। सांस नहीं मिलेगी, सांस तो 10 मिनट ना मिले तो निकल लेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट यू आर नॉट इनकंसिस्टेंट। तो पढ़ाई में ही क्यों, हर बार पढ़ाई का ही क्यों सेक्रीफाइस होता? जब मेरे को पढ़ना ही है, चाहे मैं जॉब कर रहा हूं तभी मैंने बैच ज्वाइन किया था, मेरे को पढ़ना था। और जॉब नहीं ज्वाइन कर रहा हूं तो भी मेरे को पढ़ना ही था घुमा फिरा के। तो जब भी सेक्रीफाइस करने की बारी आती है तो फिर पढ़ाई को छोड़ के, मतलब बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई का ही सेक्रीफाइस क्यों? आज पार्टी करनी है, लेट अस सेक्रीफाइस द स्टडी। आज गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, लेट अस सेक्रीफाइस द स्टडी। आज घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ, लेट अस डू द सेक्रीफाइस ऑफ द स्टडी। डोंट डू दैट। इट डजंट मीन दैट आई एम आस्किंग यू टू बी आइसोलेटेड फॉर अ ईयर। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ हैं, आप रख सकते, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन करने के बाद जाओ ना दोस्तों के साथ पार्टी करो, बात करो ना रात भर, मेरे को कोई इशू नहीं है, टारगेट पूरे करो। Always remember, if you will be finishing the target each day, आप कुछ भी कर रहे होगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आप बाकी सारी चीजों को लिए अगर सिर्फ टारगेट को साइड करते जाओगे, ड्रीम का सत्यानाश हो जाएगा। डोंट डू दैट यार। मैं नहीं चाहता कि आपने बैच ज्वाइन किया फिर आपको आपका सिलेक्शन ना हो, फिर आपको फिर से दोबारा ये प्रोसेस में आना पड़े। ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। डोंट डू दैट। You have joined the batch, get selected and get out of this vicious cycle. It is like a vicious cycle. Don't remain here itself. Reach लबासना, खत्म करो ना। 1 साल की जर्नी बनाओ, खत्म करो। गलती नहीं करोगे तो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस यू विल गेट थ्रू। आप कर ले जाओगे, सिलेक्शन हो जाए। और गलती करते रहोगे तो फिर वही हर साल के कहानी,
फिर बैच में एडमिशन, फिर वो सारी चीजें. डोंट डू द मिस्टेक. देयर विल बी मैनी इंस्टेंट्स. अब मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताता हूं. आई वोंट बी टेकिंग हिज नेम. He was facing some trouble in filling the mains form. I called him at home कि उस बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो. He is in my mains मतलब mentorship batch. He has his mains. He has the engagement of his sister. And he was about leaving 9th or 10th. He was leaving actually 2 days back. And on he was planning to return on 15th or 16th. 6-7 दिन. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसका मेंस है, उसका वो किस्मत वाला है, उसका मेंस है, और उसको लग रहा है मैं 16-17 क्या. तो यहां पे क्या हुआ? ही इज गिविंग हिज फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ प्राइमेसी ओवर हिज एग्जामिनेशन. बट द थिंग इज दैट घर पे जितना अरेंजमेंट था हो चुका था. फैमिली वाले करे थे, फैमिली वाले खुद बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई करो बेटा. वो जा रहे हैं और उस चीज में वो इतना मैंने बोला कि भाई जस्ट गो थ्रू देयर थ्रू द फ्लाइट, अटेंड करो, वापस आओ, पढ़ाई करो. आपका प्रेजेंट होना, आई वोंट बी सेइंग कि डोंट बी प्रेजेंट ओवर देयर, बट एट दिस टाइम बाकी चीजें जाके आप इग्नोर कर सकते हैं, रिलेटिव से मिलना इग्नोर कर सकते हैं. अब देखते हैं, वो उनका मर्जी है. बट समहाउ जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज नुकसान पहुंचाती है. तो आपके पास कई बार आएगा कि आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको टारगेट पूरे करने के घूमने जाना है. अगर घूमने जाना है, सिंपल सी चीज है, टाइमली पढ़ लो, कंप्लीट कर लो 2 चैप्टर. भाई सर पढ़ते पढ़ते का आपको आइडिया भी लग जाएगा कि सर अगला चैप्टर यही देने वाले, क्योंकि आपको मैं पीवाई की डॉक्यूमेंट दूंगा. तो उसको पढ़ने के साथ साथ व्हाट यू कैन डू, भाई 2 दिन का टारगेट मैंने पहले कर लिया, अब मैं 2 दिन घूम आऊंगा, तब तक सर आएंगे, तब तक मैं डन लिख दूंगा. कर लो ना. लोग ये नहीं करते, बोलते हैं बाद में करूंगा. पहले कर लो, क्या दिक्कत है? पढ़ लो. घूमने भी जाओगे टेंशन फ्री होके घूम के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं. बट वो नहीं करते हैं. वो पुश करना पड़ेगा ना खुद को. हम कभी भी अपने आप को डिस्कंफर्ट नहीं देना चाहते. गिव द डिस्कंफर्ट टू योरसेल्फ, बिकॉज struggles are the pillars of your success. Nothing great is ever achieved in your comfort. Greatness is achieved in the discomfort only. अगर आपको जिंदगी में वो पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया. समथिंग डिफरेंट, एंड समथिंग डिफरेंट इज दैट आपको डिफरेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, whenever I will be asking you to write, you will have to write. You will see amongst you, आप ही में से कुछ बच्चे जो आज बोलेंगे कि मैं लिखूंगा, वो नहीं लिखेंगे. ये तय है. लेकिन मैं आज आपको समझा रहा हूं, अगर आप लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा. There is a problem with me that I speak truth in front of you. मैं वो नहीं बोलता जो आप सुनना चाहते हैं, मैं हमेशा वो बोलता हूं जो आपके हित में होता है. There is a difference between these two things. अक्सर हम जो सुनना चाहते हैं और जो सामने वाला भी वही बोल रहा होता है, तो वो हमें अच्छा लगता है कि भाई दैट पर्सन वो मेरे को समझता है. लेकिन मैं आपसे हमेशा बोलूंगा वो जो आपके सिलेक्शन के हित में होगा, क्योंकि मेरा काम है आपका एज अ मेंटोर. माय वर्क इज टू गेट यू एज अ सेलेक्टेड पर्सन. सो उस चीज के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं. एंड समटाइम्स इस चीज के चलते कभी आप नाराज हो जाए तो बड़ा भाई समझ के माफ कर देना, बट मेरी बातें आपके हमेशा हित में होंगी, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए. उसके लिए जो जरूरी है मेरे लिए वो प्रायोरिटी है. आपके लिए हो ना हो, फॉर मी योर सिलेक्शन इज माय प्रायोरिटी. तो अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे पता है सिलेक्शन होगा. सो डोंट डू द मिस्टेक. एंड I had always been a supportive mentor for all my students. Few of the students have taken again admission in this batch. Even they know कि सपोर्ट वाले वाइज मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं. Otherwise, why would they have been here? So the thing is that what I was conveying to you, that you will have to be consistent. Because remember, consistency is a rare quality, but for the selection you will have to be consistent. Then comes
there is the lack of revision. Don't worry about that. We will be doing a lot of revisions. So revision के चलते आपका selection नहीं रुकने दूंगा. There is the lack of proper planning and guidance. This is my work. I will be doing. You don't have to do the planning. Planning is upon me. Overconfidence. Don't be overconfident. Like don't ignore C-set. पढ़ते रहना है. भाई आप दूसरों से अच्छे हैं, बेहतर है, लेकिन हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं. योर फाइट इज नॉट योर नेबर, योर फाइट इज नॉट विथ योर नेबर, योर फाइट इज विथ यू ओनली. अगर आप अच्छा करेंगे तो अपने आप चीजें हो जाएंगी. अपने से बेहतर करना है हर अगले दिन, दूसरे को मत देखो. ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर द यूपीएससी सिलेबस. इट इज इंपॉर्टेंट. एंड यू मस्ट नॉट चूज द रॉन्ग ऑप्शनल. इट इज इंपॉर्टेंट. सो योर टास्क इज टू डिसाइड एन ऑप्शनल and then stick to it. I have given few names. You can take another optional also, but take the things in such a way that your decision would be appreciated. And this is how when you will be choosing the right optional. Then this is the syllabus. I will be giving you the printout. So this is the syllabus of UPSC Prelims syllabus, GS1, GS2. Now this current affairs we will be doing from the monthly magazine. You can follow any magazine. I do recommend, although Vision they give the good magazine. And then there are the institutes also who also provide the good magazines. You can follow any of them. I plan the design. I design the targets like this, that you can follow any target, any magazine. Like I will ask you to divide your magazine in 1/8 part. Like when suppose it has 80 pages, then 1/8 part is 10 pages. 1/8 will mean page number 1 to 10. Page number 2/8 will mean page number 11 to 20, and something like that. This is current affairs. Then we have history of India and Indian national movement. This thing is also part of your GS1. This thing here is also part of GS1. So these two form the more important part of GS1. So if when we will be reading it, try to understand. मैं भी दिखाऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे तो you will find that हमारा जो source है, whatever the source we have, it is same. Source same है. So when the source will be same, so somehow without reading the mains also, you will be reading the source of the mains. तो आपको अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेंस के लिए. तो indirectly you will be preparing for the mains also. Same goes for polity and governance. Lakshmikant topic 1 to 9 paper 2 में आपको help करेगा. Then you have the economic and social development. Then you have the general issues and all, and then you have the general side. This is about the CSET. And then this, see, Indian culture and something like that till here. This is your common syllabus with the prelims portion. And then here, this is your common portion till prelims portion. And also, if you will be finishing this, you will be finishing nearly 70 to 75% syllabus. Less things can be done in a very short span of time. This is the like 20 to 25% of the syllabus of paper. तो हम पहले ही कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली आपका पेपर 1 मेंस के क्वेश्चंस देखते हुए नहीं हुआ, लेकिन हो गया. Then you have paper 2 topic 1 to 9. Here the mostly the Lakshmikant will be helping you. Topic 1 to 9. बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कर लेंगे. Don't worry about that. Then this portion is not in your syllabus. ये थोड़ा सा पोर्शन है जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो वी विल बी कवरिंग दैट, और इसके लिए बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स, तो वो मैं आपका करवा दूंगा. देन हियर ये सारा पोर्शन ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ रहे होते हैं व्हेन यू विल बी डूइंग द इकोनॉमी, तो आपका ये पोर्शन भी इनडायरेक्टली खत्म होता रहता है. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म होता रहता है. अवेयरनेस वाला हम ऑलरेडी पहले ही कर लेंगे, कंजर्वेशन वगैरह हम पहले ही कर लेंगे. दिस इज देन यू हैव पेपर 4 जो एथिक्स वाला सिलेबस है, ये हम बाद में करेंगे. So this is something about the syllabus. Wait. So we have planned it like this. So your task is to decide your optional first. You have to decide your optional and you have to start with your optional. Meanwhile, we will also be doing the answer writing thing also. There is a concept called community answer writing, whereby I will be giving you each day nearly to write,
And meanwhile, I will be taking a video meet on the answer writing also. So you will be learning कि भाई answers लिखते कैसे हैं. Try to attend it live. You will have many extra features. You do have many extra features apart from the previous batches. I have tried to enhance the features, and there are many topics of the mains which are not properly yet made by even the most premium institutes of India. I will be supplying you the content on that. बहुत ही स्कैटर्ड और अच्छा कहीं नहीं दिया. कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, वहां पे आपको कंटेंट मिलेगा. So this was something that is very important. Targets will come at 9 p.m. in the night. Your task will be to finish the target and post done by the next day before 12 p.m. You do have a peer group, that is a serious peer group. You can always discuss your things. Before posting your question, it is important for you to think on that question. See, whenever you will be posting the question, answering is my duty. But if you will be posting that question before thinking, you won't be applying your mind, and I won't be able to apply your mind for the mains. मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा मेंस के टाइम पे या प्रीलिम्स के टाइम पे. आपको फेस करना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं. देन आस्क. इससे क्या होगा, आप सोचना सीखेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप वो कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे. इट विल मल्टीप्लाई. एंड वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ रिवीजन. बहुत प्रैक्टिस करनी है. इस बार प्रीलिम्स तो ऐसा देना है कि प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए. और प्रीलिम्स नहीं रुकेगा तो 80-90 दिन जो मिलेंगे एक्स्ट्रा, उस टाइम पे भी लोग मेंस फोड़ देते हैं. और आप तो मेंस की फिर भी तैयारी किए रहेंगे और आपके साथ मैं हूंगा. आप अकेले नहीं होंगे. इवन टुडे the J1 batch that is running for the mains, within 2 days we will be finishing the ethics wala portion. We have finished the geography wala portion. We have done the brainstorming portion of 2013 to 2019. तो हमने इतना कर लिया, 4-5 दिन में हो जाएगा. उसके बाद अभी हम अब आंसर राइटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, बट उसके बाद हम ऐसे होगा भी लिखना शुरू कर देंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी हैव मेनी क्लासेस ऑफ द आंसर राइटिंग पोर्शन ऑफ द J1 बैच, दैट इज ऑफ द मेंस. तो हमने इतना कुछ अचीव किया. इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेज कैसे करें. तो मिस मैनेज के चलते बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है. बट व्हाट वी हैव अचीव समथिंग बिग इन दिस वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन 12-13 डेज. तो आपके साथ तो और अच्छा होगा कहीं ना कहीं. करते चलिएगा, हिम्मत मत हारिएगा. कभी कभी लगेगा यार मेरे बस की नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर आपके बस की नहीं है तो आप कभी इस एग्जाम के बारे में सोच भी नहीं पाते. अगर आपने एक बार सोचा, इसका मतलब आपके बस की नहीं. इट इज सिंपली मीन थोड़ा सा कभी फ्रस्ट्रेटेड है. थोड़ा योगा कर लीजिए, थोड़ा बाहर निकल जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, वापस आके पढ़िए. 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू द जुम्बा डेली. 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम. देखो यार, शरीर में जब एनर्जी रहती है ना तो पढ़ाई करने का मन करता है. शरीर में एनर्जी नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा. सो डोंट डू दैट. डोंट बी लिथार्जिक. लिथार्जिक रहेंगे, टारगेट्स लेट कंप्लीट होंगे, आपको लगेगा मैं यार छूट रहा हूं. डोंट डू दैट, उससे दिक्कत होगी. तो डोंट बी लिथार्जिक. डोंट ईट आउटसाइड. बाहर का खाना बीमार पड़ने का श्योर रेसिपी है. इट इज द श्योर रेसिपी फॉर द डिजेस्टर. सो डोंट डू दैट. कुछ अच्छा मन है खाने का, पनीर खाने का मन है, मुर्गा खाने का मन है, मटन खाने का मन, जो मन है. आई रिस्पेक्ट एवरीबडी. वेज नॉन वेज डजंट मैटर. घर पे बना लो, खा लो. हमारे पापा तो बोलते हैं अच्छा सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है. बट द मेन कंसर्न इज दैट यू वोंट बी फॉलिंग इल. बिकॉज इफ यू विल बी फॉलिंग इल, मैं टारगेट्स रोक नहीं सकता आपके लिए. आपका नुकसान होगा. जस्ट थिंक, यू नेवर फेल इल बाय ईटिंग एट होम. यू ऑलवेज फेल इल बाय ईटिंग आउटसाइड. फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है. व्हाई? यू नो द रीजन. खाना खराब होता है. तो घर पे खा लो 1 साल यार, कोई दिक्कत नहीं. कभी कुछ महीने भी इवन अगर मन करे ना तो फिर भी पैकेट फूड जो मैगी वैगी आती है वो फिर भी चल जाएगा. वो जो रेस्टोरेंट में होता है ना कि जो बढ़िया मटर पनीर बना के दे रहा है, वो मत खाना, दिक्कत कर देगा. एंड आप यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग दिस. कैसे बनाते हैं, कितनी गंदगी से बनाते हैं, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा. सो बी हेल्दी फॉर अ ईयर. इट इज इंपॉर्टेंट. योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. And apart from that, work upon your mental health also. Be positive. Be positive. Nothing great is ever achieved with negativity. Nothing.
अगर आप हमेशा अपने ऊपर डाउट करते रहेंगे तो यूपीएससी कैसे ट्रस्ट करेगा? हाउ इज यूपीएससी गोइंग टू ट्रस्ट यू if you will be if you will not be trusting yourself? You need to trust your caliber, because if you won't be trusting upon yourself, UPSC is not going to trust you. Now you will find many videos today whereby people are saying that how UPSC has ruined my life. UPSC never ruins anybody's life. It gives you something, it gives you knowledge, it gives you thought to think. आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, तो यूपीएससी कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता. एंड देयर इज नो एग्जाम दैट इज सर्टेन. स्टेट पीसीएस का क्या सर्टेन है? क्या एसएससी का सर्टेन है? देयर इज नन, नो एग्जामिनेशन. ओनली देयर इज ओनली वन केस दैट कैन examination be certain, when if there are 10 seats there are 10 candidates. If there are 15 seats, there are 15 candidates or less number of candidates. The moment there is one extra candidate, it will put uncertainty on all the 16, because one will be rejected. So uncertainty थोड़ी सी रहती है, लेकिन जो लगा रहता है उसका सिलेक्शन होता है. आपको लगे रहना है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट. एंड इस पूरी जर्नी के दौरान आपको मेरा पूरा सपोर्ट. मैं लड़ूंगा आपके साथ आपके लिए, और आपको मैं पूरा सहयोग करूंगा जो भी पॉसिबल है. लेकिन यार आप मत हारना. आप हार गए तो फिर सब कहानी खत्म. दिक्कत होगी, आई नो, प्रॉब्लम होगी. यू विल बी फेसिंग सम ट्रबल्स. कई बार टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे होंगे. आस्क मी. बट पीछे नहीं हट. डन लिखना है. ये नहीं हो कि डे 1 से डन ही नहीं लिखा, डे 2 से डन ही नहीं लिखा. ये नहीं होना चाहिए. So this was something which I wanted to discuss with you. Today is 11th. Targets will start coming from 13th night, 9 p.m. and from 14th you will be studying. We will be doing a limited number of books. We are going to start with Polity, arranged Lakshmikant. 6th edition you have, that is more than sufficient. If you have 7th edition, don't worry, you can do that also. The PYQ document that I am going to provide currently, how to use that PYQ document, that is there. I will be providing you the PYQ document for each subject. How you will have to do, see the questions that has been asked from the topic. Whenever I asked, suppose I say do chapter number 1. So check the chapter number 1 upon the previous question document. Then from that PYQ document, see the question that has been asked in the question from that topic, and then read the instructions, and then go and read your book. While reading the book, keep that instruction especially in mind. Now, it doesn't mean that you will have to leave everything. If there is anything analytical, you have to keep in mind that also, because you will be reading the same book for the mains also. But give a special focus to the topic that is explicitly mentioned in the prelims वाला PYQ document, because वो चीज आप अक्सर भूल जाते हैं. मेंस के लिए इंप्रूवमेंट करने का टाइम मिल जाता है. सो डू दैट. उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करते हुए कर लेना. दिस इज द पर्पज ऑफ दैट PYQ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. एंड आफ्टर डूइंग दैट, come back, solve the question. So from day 1 or day 2, you will be actually solving the questions also. So PYQ based preparation इसे ही कहते हैं. So like this we will be doing. 9 p.m. you will be getting the target. By 12 p.m. you will be posting the done. Make sure that you write done. Don't do it from day 1 कि भैया अब आज पढ़ने का मन नहीं करा, चल भाई थक गए, घूम लाते. अभी तो टाइम, अभी तो सर ने ज्यादा टारगेट नहीं दिए हैं, छोड़ देते. Don't do that. Be sincere. सिंसियर रहेंगे. सी यू डोंट हैव टू बी सीरियस, बी सिंसियर. 8 घंटे अ डे विल कीप योर सिलेक्शन नियर बाई. 8 घंटे पढ़ लीजिए डेली, मोर देन सफिशिएंट होता है. कंसिस्टेंटली लेकिन पढ़ लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, कभी दिक्कत नहीं होगी. एंड वेन एवर आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स टू राइट, एक्चुअली आई विल बी गिविंग यू, ताकि आंसर राइटिंग बनी रहे. तो आई विल बी गिविंग यू द टॉपिक वॉट एवर द यू आर रीडिंग फ्रॉम द like current affairs. So मैं आपको link provide करूंगा, and you will be reading that topic from that article, and then you will be writing that question in your copy, and then you will be posting आपने लिखा क्या है.
अपार्ट फ्रॉम दैट जो फीचर्स हैं बैच के वो आपको ऑलरेडी ब्रोशर मिल ही रखा है, वो सारे फीचर्स के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, वो आपको जो बोला गया है वो मिलेगा. So this was something I wanted to discuss with you. So now, if you have any question, do ask me. आपके सामने एक mic होगा, the mic would be in front of you. So you can simply click on it, and I will be come to know that you want to ask something. I will allow you to speak. Anybody of you. No questions? Anupriya. Yes, Anupriya, I have unmuted you. Wait. Am I audible, sir? Yeah, now you're audible. Yes. सर एक रिक्वेस्ट है कि जो हमें पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट के लिए जो पीडीएफ मिलती है या जो बेसिकली किसी भी मटेरियल के लिए पीडीएफ मिलती है, सर एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे थोड़े दिन पहले अगर प्रोवाइड करा दें, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट एक वीक पहले प्रोवाइड करा दें, तो सर उसे प्रिंट कराने में थोड़ा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि एंड मोमेंट बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, मूड बहुत उसमें टाइम और मूड वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू बाय टुमारो इटसेल्फ ऑल द पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट्स. अपडेटेड वर्जन्स जो हैं वो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा. टिल नाउ द पीवाईक्यू जो है उसमें 2023 तक के क्वेश्चंस हैं, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट, वो मैं डाल दूंगा. यस सर, थैंक यू सर. वेलकम. एनी मोर क्वेश्चंस, डाउट्स? यस आस्था. आस्था मैंने आपको अनम्यूट किया है. आई होप आई एम ऑडिबल. आस्था आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. हेलो सर. यस सर आई वांट टू आस्क सर, लास्ट टाइम सीसेट की वो टेस्ट सीरीज थी, तो सर वैसा कुछ अभी इस बार रहेगा? आई एम प्लानिंग एक्चुअली, इफ आई विल बी ब्रिंगिंग तो जुलाई के एंड के आसपास, जुलाई नहीं अगस्त के एंड के आसपास आई विल बी ब्रिंगिंग. आई एम प्लानिंग समथिंग. यस सर, बिकॉज लास्ट टाइम सर उससे बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि टॉपिक्स कवर करके हो गया था उससे काफी. ओके, आई विल लुक इनटू दैट. ओके सर, थैंक यू. Any more questions? Any more doubts? Yes, Sasank. शशांक, आपके सामने एक माइक होगा, उसे आप अनम्यूट कर लीजिए. यस, नमस्ते सर. नमस्ते सर हमने आपका जो पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट है सर, हमने वेबसाइट से परचेज करा था सर. जो आप सेंड करेंगे वही सेम चीज रहेगा कि कुछ इसमें डिफरेंस रहेगा? नहीं, सेम है वो तो. अभी तो पीडीएफ, बस ये कि आपको अब आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में भी होगा. वेबसाइट से जो भी बच्चे परचेज करते हैं उनको हम पीडीएफ नहीं देते, हम सिर्फ हार्ड कॉपी ही देते हैं. अच्छा ठीक, ओके सर. तो एक तरह सेम है ना सर? सेम है, राइट. और सर जो आप सर टेलीग्राम चैनल पे जो एंशिएंट हिस्ट्री 33 पेजेस नोट्स, सर जो वही नोट्स है ना जो आपने वेबसाइट पे सेंड कर रखा? राइट, वही है. ओके सर, ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्ते सर. नमस्ते. एनी मोर डाउट्स? एनी मोर क्वेश्चन? यस श्वेता. मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारी जो श्वेता जी, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है. सर अभी सही आ रही है? बताएं. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो आपने बोला कि पहले पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, तो साथ में और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी के साथ? इन्वायरमेंट. ओके सर, मेरे को यही जानना था. लाइक लास्ट टाइम पॉलिटी और ज्योग्राफी से स्टार्ट करा था हमने, तो वही जानना था कि एक्चुअली में साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट या फिर इको के कोई एक सब्जेक्ट मेरे को चाहिए थे कि स्टार्टिंग में. पॉलिटी एंड एनवायरमेंट, देन हिस्ट्री ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक. ओके.
थैंक यू सो मच। Welcome. Any more doubts? Any question? Yes, Anupriya. हेलो Yes, Anupriya. सर, अभी हम जब बैच स्टार्ट करेंगे, जैसे हम मिड जुलाई में ऑलमोस्ट, सर अभी हम प्री स्पेसिफिक पढ़ेंगे या इंटीग्रेटेड से स्टार्ट करेंगे? Pre-specific for the next 3 months. We will put that to revision and then उसके साथ ही साथ हम मेंस में लग जाएंगे ताकि आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे सके, प्रैक्टिस में रहें पूरी तरह से। तो फुल लेंथ प्री की टेस्ट हम टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट हम नवंबर से ही शुरू कर देंगे एट बेस्ट, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा, ताकि आप रेगुलर मैच आता हूँ इस बार आप लोग ढंग से प्रैक्टिस में रहे। 5-6 महीने आप प्रीलिम्स का रिवीजन प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रीलिम्स आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और थोड़ी मोड़ी अगर मेंस में कमी रहेगी तो आपके पास हमेशा टाइम होगा कि आप मेंस के टाइम पे उसको सुधार सको, क्योंकि आपको 100 दिन वहां पे भी मिलेंगे जहां पे आपको एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए पढ़ना होगा। यस सर। तो सर फुल लेंथ मॉक लगाने स्टार्ट अभी, जैसे मैं अभी तो बताऊंगा, पॉलिटी अभी नहीं, नवंबर से सिलेबस तो कंप्लीट करा दे तो पहले। यस सर, तो उसके अभी वो टेस्ट सीरीज खरीदनी है या जो आप जो प्रोवाइड कुछ भी करा नहीं, दे वही ठीक? कुछ भी ठीक है, नहीं। यही पूछना है। ठीक। यस आस्था। सर आपने अभी बीच में बोला था सर आप कुछ वीडियोस वगैरह लेके आने वाले थे यूट्यूब पे रिगार्डिंग सर ज्योग्राफी या कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। सर मुझे क्या बस थोड़ा जानकारी चाहिए थी उसके बारे में, बिकॉज सर मेरे साथ में ये इशू पहले हुआ था। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं सर वो समझने में दिक्कत होती है, जैसे साइंस के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं सर उनमें नहीं समझ में आता, जैसे स्पेस के कोई टॉपिक है या कुछ है तो सर आपकी एक्चुअली आई हैव द प्लान टू गिव द कंप्लीट ज्योग्राफी वीडियोस यूट्यूब पे, ताकि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए, लाइक जस्ट लाइक द सी सेट वाला थी। पर लेके आना है, बट करंटली आई एम हैवीली एंगेज्ड इन दिस क्रिएशन ऑफ मिनोमिक्स, ताकि वो मेंस के बच्चों को मैं प्रोवाइड कर सकूं जो ऑलरेडी हमारे बैच में है। मतलब कोशिश ये है, ऑल्दो उनको कमिटमेंट नहीं था, बट मिनोमिक्स से काफी हेल्प मिल जाती है, वो आप लोग को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली वेट अ सेकंड, यूपीएससी के जो भी टॉपिक्स हैं, वॉट एवर द टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी आर देयर, आई एम जस्ट रिकॉग्नाइजिंग ऑल द थीम्स एंड विथ ईच टॉपिक यू विल बी एबल टू डू लाइक, वो टॉपिक आ गया सामने और आपके पास एक वर्ड होगा, उस एक वर्ड से आप उस टॉपिक को पूरा कर लोगे। मैं एक एग्जांपल, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, वेट अ सेकंड, I wait. Like such a question is asked, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। सपोज अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, कई बार होता है ना कि रॉबर्ट क्लाइव रोल इन इंडिया, कभी ये आ गया, क्योंकि फ्यू पीपल आर इंपॉर्टेंट, लाइक डलहौजी, क्लाइव, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट देयर इज वन सिंपल मिनोमिक्स, क्लाइव्स पास्ट, क्लाइव का पास्ट, क्लाइव्स पास्ट। C for conquest of Arcot, L for leadership in Bengal, I for Indian administration, V for victory at Palasi, E for expansion of British territories, S for strategic brilliance, P for political influence, A for administrative reforms, S for securing British interest, T for tributes and titles। अब इतना अगर आपको पॉइंट याद होगा तो इसके आगे आपने पूरा इतिहास पढ़ रखा है, आराम से यू विल हैव सफिशिएंट पॉइंटर्स टू राइट। तो प्लान इस तरह से है, लाइक लेट्स से कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, इसका सिंपल मिनोमिक है ब्रिटिश गेन्स। तो बी फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या वो था, आर फॉर रेलवेज, आई फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, टी फॉर टैक्सेशन, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एस फॉर सब्सिडी अलायंस, एच फॉर हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन, जी फॉर ग्लोबल ट्रेड, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एन फॉर नेटिव इंडस्ट्रीज सप्रेस्ड, एस फॉर सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन। सो समथिंग लाइक दिस वी आर क्रिएटिंग द मिनोमिक्स, और ये हम सिर्फ इसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी कर रहे हैं।
तो इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप ये जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे, लाइक लेट्स से वेट अ सेकेंड, लाइक आर्ट एंड कल्चर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए लाइक देयर इज अ टॉपिक, सपोज मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में आ गया कि राइट समथिंग अबाउट द मौर्यन आर्किटेक्चर और द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, हाउ इट हैज अफेक्टेड ये वो। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो मिनोमिक्स हमने बनाया वो है मौर्यन साइट, एंड मौर्यन साइट का फुल फॉर्म क्या है? मोनोलिथिक पिलर्स, अशोकाज स्तूपा, यू फॉर अर्बन प्लानिंग, आर फॉर रॉक कट क्रेव्स, वाई फॉर यक्ष एंड यक्षी स्कल्पचर, ए फॉर आर्टिस्टिक डिटेल, एंड फॉर नगरा आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस, एस फॉर स्टेयरकेसेस एंड गेटवेज, आई फॉर इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट, टी फॉर टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, ई फॉर एलिगेंट कार्विंग। तो इस तरीके से वी व्हाट वी आर क्रिएटिंग ना, कि अगर उस टॉपिक आ गया, वो थीम आ गई और आपने वो मिनोमिक भी याद आ गया, तो यू विल हैव अ पॉइंटर होगा, बना के कुछ ना कुछ लिख दोगे। तो आप यू वोंट बी एट लाइक, आप ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक ब्लैंक हो जाएंगे। कई सारे बच्चों को क्या होता है ना, आर्ट एंड कल्चर में पॉइंट जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज का ये एक परमानेंट सॉल्यूशन बन सकता है कि इश्यू नहीं होगा, पॉइंट्स की तो कमी नहीं होनी है। उसके आगे चूंकि यू वुड हैव रेड, हमें ध्यान उस टाइम पे एकदम से ध्यान रहता है ना कि क्या क्या लिखे, आपके पास सफिशिएंट वो बस पॉइंटर, और पॉइंटर बहुत बड़े नहीं होंगे, 200-250 पन्ने में खत्म होंगे सारे मिला के, चारों सब्जेक्ट के 250-300 पन्ने, वो मैं बार बार इतनी बार रिवाइज कर दूंगा, वो याद ही हो जाएंगे आप लोगों को। तो जब आया सामने, और इसमें से कम बिलीव मी, हर पेपर में एटलीस्ट 50-60-70% थीम रिपीट होगी, तो आप क्या होगा कि 70% क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आप टॉपर्स में आ सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग इट एट प्रायोरिटी, ताकि मैं अपने मेंस के बच्चों को असिस्ट कर पाऊं। नहीं हो पाया तो आप लोगों को तो जरूर ही दूंगा, आप ही लोग के लिए बना रहा हूं। आफ्टर दैट आई विल बी वर्किंग ऑन जियोग्राफी, और जब जियोग्राफी पढ़ाऊंगा इट इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन, बट 1 by 1 ही कर सकते हैं, अकेला हूं। यस आस्था। यस सर, आई हैव सीन ये निमोनिक्स वाला सर आपका देखा था मैंने प्रीलिम्स वाले चैनल पर सर, इट वाज क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि सर क्वेश्चंस में कभी कभी सब मेरे साथ में ये चीज होती थी, पॉइंटर्स याद नहीं आते थे, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर बेकार हो जाता है आंसर का। ये वो नहीं सर होगा, दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर, बस यही पूछना था थोड़ा, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में मुझे दिक्कत होती है। तो आप लगभग ज्योग्राफी का कब तक, मतलब ऑन एन एवरेज कब से स्टार्ट हो सकता है? फॉर माई वीडियो क्लासेस तो बाद में होंगे, अभी तो नहीं होगा। आप लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट पहले हो जाएगा, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। इस साल तो आ ही जाएगा, बट देखते हैं कितनी जल्दी आ सकता है। राइट, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, सुमित, आई हैव अनम्यूटेड यू। सुमित कुमार। हेलो सर। क्या सर जैसे पहले हम लोग कॉमन सब्जेक्ट करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए है, सिर्फ पॉलिटी एंड एनवायरमेंट? सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से करेंगे कि उसके लिए मेंस के लिए भी? प्रीलिम्स स्पेसिफिक करेंगे। जस्ट नाउ आई वाज डिस्कसिंग दिस ओनली। सर जैसे जो जो कॉमन था उसको दोनों से कर लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो बाद में सिर्फ जो बाकी बच जाता है वो करते हैं। See, I can understand the uncertainty in your mind. Just think like this कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होगा तो क्या आप मेंस लिखोगे? नहीं। और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे और सपोज थोड़ा बहुत मेंस में कुछ कमी रह गई, तो क्या आप 100 दिन में देयर विल बी चांसेस टू इंप्रूव एटलीस्ट? यस सर। हम उसी स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। ज्यादातर बच्चे इस टाइम पे यही कर रहे हैं कि वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको मैंने अभी बताया जो भी हम बुक्स पढ़ रहे होंगे ना, वो आपका एक्चुअली इनडायरेक्टली मेंस भी तैयार करवा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, सेम किताब आपको मेंस के लिए भी पढ़नी है, लेकिन उस पढ़ते वक्त मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको अभी मेंस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। कंटेंट तो फिर भी पूरा ही पढ़ोगे ना, तो इनडायरेक्टली कंटेंट तो आप मेंस का भी पढ़ रहे हो साथ ही साथ। और ये सारे जो 6 सब्जेक्ट है ना प्रीलिम्स वाले, वो हो गए, तो मेंस का एक्चुअली आपका 50% सिलेबस वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे, उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, उसके बाद अलावा आप ऑप्शनल कवर कर रहे होंगे। तो ये आपने कैसे मान लिया कि मेंस नहीं कर रहे हो? उसके अलावा आप आंसर राइटिंग भी कर रहे होगे, तो मेंस तो आप एक्चुअली कर रहे हो।
नहीं सर, मेरा जैसे कहना था कि जैसे मेंस के लिए जो सिलेबस में जो टॉपिक रहता है ना, जैसे पॉलिटी के लिए है, तो उस तरह से जैसे डोंट सर। वरी अबाउट दैट, ये बहुत ही सोच समझ के उस चीज को किया गया है। मेंस के बहाने आपके वो टॉपिक्स का दोबारा रिवीजन हो जाएगा और आप बेहतर कर पाएंगे। ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उस कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी से, क्योंकि अगर हम मेंस का पोर्शन लेते हैं तो यही सेम चीज हमें कवर करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, बट फिर आपका एग्जाम पास आ जाएगा और आप उस प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस करने का टाइम कम बचता है आपके पास। तो मैं वो नहीं चाहता कि ये चीज हो। ओके सीधी सी सर। बात है, एक सिंपल सी चीज है, आप प्रीलिम्स होगा तभी मेंस लिखोगे। एक सिंपल सा लॉजिक पे चल सकते हैं। प्रीलिम्स तो सीधी सी बात है, लोग क्या करते हैं मेंस सिक्योर करने में लगे रहते हैं, प्रीलिम्स का आता पता नहीं है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आप फिर भी इंप्रूव कर लोगे मेंस के लिए, और 100 दिन मिलेंगे आपको मेंस इंप्रूव करने के लिए। अगर कुछ कमी रह भी गई तो कुछ दिन आप उस टाइम पे आराम से कर भी लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। टारगेट आज से मिलेगा सर? 13th। 13। या ओके, थैंक्स। वेलकम। यस शशांक। सर हमने एक दिन यूट्यूब पे सर एक ऐसी वीडियो देख रहे थे सर, उसमें कह रहे थे कि प्रीलिम्स के लिए कम से कम 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। तो सर पर सब्जेक्ट कम से कम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए सर हर सब्जेक्ट में? कुछ नहीं है, फालतू की बात है। अच्छा। प्रीलिम्स के लिए यस एक बात बताओ, तो जो बच्चा 10,000 सवाल लगा के जाएगा उसका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। यस सर। बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रीवियस से क्वेश्चन लगाते हो, कोचिंग का पेपर देखते भी नहीं है, उनका प्री हो जाता है। अच्छा। सफिशिएंट प्रैक्टिस, आपके प्रीवियस से क्वेश्चंस कर लीजिए और सफिशिएंट प्रैक्टिस 30, 35, 40 पेपर्स इज मोर देन एनफ, बहुत है। और इस बार तो हम ज्यादा पेपर्स लगाने की फिराक में, तभी तो हम प्रीलिम्स पहले कर रहे हैं। अच्छा ओके सर। सर प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं सर, उसके ऑप्शंस कहते हैं कि ऑप्शन को भी एक बार ध्यान देना चाहिए, तो सर ये बिल्कुल सही कहते हैं, बट सर ऐसा। कोचिंग के ऑप्शंस को नहीं, यूपीएससी के ऑप्शंस को। हाँ सर, वो यूपीएससी की जो पीवाईक्यू है सर, उसके ऑप्शंस को एक बार ध्यान राइट, देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल सर। देना चाहिए। वेलकम। ओके सर। एनीबडी ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? यस अनुप्रिया। सर अभी हम नहीं पढ़ेंगे सॉरी। प्री की पढ़ाई। सर अभी हम जैसे प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक, तो सर हम आंसर राइटिंग भी करेंगे इसके साथ? राइट, हम आंसर राइटिंग तो एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट कर देंगे। कम्युनिटी आंसर राइटिंग विल बी स्टार्टेड एंड दैट विल बी बेसिकली बेस्ड अपॉन योर मेंस वाला, लाइक करंट वाला पोर्शन, जो करंट से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया, लाइक विमेन इश्यूज पे कुछ आ गया, तो मैं आपको विमेन इश्यूज पे लिखने के लिए दूंगा एक क्वेश्चन 150 वर्ड्स का। लाइक कोई टॉपिक आ गया, एल्डरली सिचुएशन आ गया, या फिर इंडिया का कुछ चाइना के साथ पंगा चल रहा है, या फिर कुछ कुछ आनाकानी हो रही, कुछ भी, आई मीन टू से जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा, जो आपका करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपका प्रैक्टिस कराता रहेगा। आंसर राइटिंग तो डेवलप अपने आप ही हो जाएगी। ये सर, तो उसके लिए बस जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं करंट से जो अवेयरनेस है, बस वही काफी है, उसके लिए कुछ पढ़ना नहीं हाँ है, वो बस काफी, मैं अप्लाई करना। आप लोग को उसके लिए आर्टिकल भी दूंगा साथ ही साथ। अच्छा, कंटेंट के साथ बस लिखना है उसको पढ़ के? आपको कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यस सर, थैंक यू सर। सर वैसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पहले से पिछले कुछ दिन बहुत खराब गए, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा लग रहा है बस कब टारगेट आएंगे, कब पढ़ाई शुरू होगी। अब अच्छा लग रहा है, फाइनली बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, इस बार फोड़ के आएंगे। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। एनीबडी ऑफ यू, एनी क्वेश्चंस? Anyone? Okay. So this was something that I wanted to discuss with you. Always remember one basic thing, that is the most important thing, that you can. And if I will be saying it in your language, me as an aspirant, I must always keep saying I can. It is important. Trust yourself. Your dreams are given for a reason. You should trust your dreams, because many times we tend to get confused about our own dreams. When somebody is confused about them, we don't trust our dreams. But if you will be trusting your dreams, nothing will stop you from reaching the basket.
यू नीड टू ट्रस्ट योर ड्रीम्स, क्योंकि सपने भगवान उन्हीं को देता है जिनके पास उस सपने को पूरा करने की ताकत होती है. बट अनफॉर्चुनेटली वी टेंड टू डिपेंड और ट्रस्ट अपॉन द कंफ्यूजन ऑफ अदर्स अपॉन आवर ड्रीम्स. आपको दूसरों बातें नहीं सुनना है. कोई कुछ बोलता है, भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का. मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा. एंड जस्ट थिंक, यू वांट अ पॉजिटिव लाइफ, यू वांट अ पॉजिटिव रिजल्ट. Will negativity give you anything? It is not going to give you anything. Will crying is going to give you anything? Today I got a call from a student. He was very tensed. He was saying to me, "Sir, my father is a primary teacher, and I have not been selected for the last 3 years. I am frustrated. My life is lost. जिंदगी खत्म सी लग रही है. I don't know what to do in life." And perhaps UPSC is not made for me, and I am perhaps I might not be able to do anything in my life. He was frustrated to that extent. And only I have all the troubles. I asked him, "Do you have 2 hands? Are they okay?" "Yes." "Your 2 legs, are they okay?" "Yes." "Mentally ill you are?" "No." You have any kind of disability?" "No." "You get the 2 times meal?" "Yes." "Any problem in arrangement of 2 time meals?" "No." Then I told him that many do not have even that also. उन्होंने करके दिखाया. उनके पास दिक्कत है कि आपके पास दिक्कत है? सीधी सी बात है, आप अपनी लाइफ की ट्रबल्स को अगर बड़ा करके देखेंगे तो आपको अपनी ट्रबल्स बहुत बड़ी लगेगी. अगर आप इस बात से शुक्रगुजार रहेंगे भगवान से कि भगवान आपने जो मुझे दिया वो अच्छा दिया, अब मैं इसको आगे लेके बढ़ जाऊंगा, तो आप वैसा सोचेंगे. ही लाइक दैट. यू कांट चेंज योर प्रेजेंट. आप अपना प्रेजेंट चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट, योर एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट. But you can definitely change your future by doing something great in the present. Present is in your hand. Future can be in your hand if you will do the activities accordingly. तो एक हिंदी में बड़ी फेमस कहावत है कि मैं भगवान को कोसता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्यूमा का जूता खरीद सकूं. मैं भगवान को कोसता था कि मेरे पास पहनने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्यूमा का जूता खरीद सकूं. तब भगवान ने मुझे एक ऐसे बंदे से मिलवाया जिसके पास प्यूमा का शोरूम तो था, लेकिन उन जूतों को पहनने के लिए उसके पास पैर ही नहीं था. लाइफ भी ऐसी है. तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इस बैच को ज्वाइन भी कर पाए हैं, इट सिंपली शोज कि यू आर ब्लेस्ड. इट शोज कि आप कुछ कर सकते हैं. आपके पास वो वैसी कोई दिक्कत नहीं है. आपका काम सिर्फ इतना सा पढ़ना है आपको, और पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो. So two of you wish to speak. Let's talk and then we will be ending this meet. राज, मैंने आपको अनम्यूट किया है. आस्था, यू आर नेक्स्ट. आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, राज. गुड इवनिंग सर. ओके, बहुत धीमे आवाज आई. अब आपकी आवाज आई लेकिन बहुत धीमे आई. आपने मे बी माइक वो कर रखा होगा. आपका आवाज तेज कर लीजिएगा, यहां से तेज कर लीजिएगा. लाइक मे बी शायद उससे चलते इश्यू. हेलो. Now not able to listen to you. Yes, आस्था. सर आप सीसेट की वीडियोस के स्टार्टिंग में सर कुछ स्टोरीज वगैरह शेयर की थी, तो सर उस टाइम पे जब भी सीसेट की वीडियोस देखते हैं सर काफी उससे अच्छा लगा. और सर कभी कभी ऐसा लो फील होता है तो बहुत हेल्प करती हैं वो चीजें. बट जब वीडियोस एंड हो गए हैं सर उसके बाद में आई थिंक कि आप थोड़ा कुछ ऐसा ही आप लेके आए शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में,
मे बी अगर आपके पास टाइम हो तो सर, बिकॉज जब भी ऐसा लगता है तो सर हम आपसे जितना मोटिवेट होते हैं सर किसी से नहीं हो पाते। तो सर उस ठीक है, फेज में मैं आपसे बात नहीं भी कोशिश होगी करता हूँ। तो उसके थ्रू हम लोग मैनेज कर लेंगे जैसे भी। ठीक है, बिल्कुल, आई विल ट्राई। थैंक यू। So this was something, and wait a second. सोनम, आपने पूछा है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड मेक नोट्स। आई विल बी शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट। आई हैड अर्लियर शेयर्ड आल्सो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। जस्ट गो थ्रू दैट, आपको समझ में आ जाएगा कैसे चूज करना है एंड कैसे पढ़ना है। यू विल बी गेटिंग द हेल्प इन दैट। So this is the thing that I wanted to discuss with you. Let's start with a positivity. Let's start with a trust upon ourselves, and make sure from day one you should not be. There should not be any day on which you would not be writing done, not done. आपको डन लिखना ही लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस इतना करते चलना कि ऑनेस्टली डन करते चलना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट इज नॉट ओनली यू हु इज वॉकिंग, आपके साथ मेरा जो सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी में गलतियां करने का भी, सब कुछ साथ में चल रहा है, सिलेक्शन का भी और गलतियों का भी। तो आप गलतियां नहीं करेंगे और वो सारे काम करेंगे जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है, तो वो कभी एंजाइटी, वो अनसर्टेनिटी आएगी नहीं। तो आपका अकेले का एक्सपीरियंस नहीं रन कर रहा होगा आपके साथ, मेरा जो यूपीएससी के साथ जो एक्सपीरियंस है ना, जो मेरा पड़ाव है, वो सब कुछ आपके साथ रन कर रहा होगा। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा। आप अकेले नहीं हैं, आप फाइट करना है आपको। एंड इन दैट आई एज योर मेंटर नीलेश कुमार सिंह इज ऑलवेज विथ यू। एंड आपको ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू एन आईडी, माई टीम मस्ट हैव प्रोवाइडेड यू एन आईडी। मैं जो पोस्ट कर दूंगा, आप मेरे साथ लाइक कभी भी परेशान है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी इश्यूज है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड डिस्कस द थिंग्स। मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूं। एंड दिस पीयर ग्रुप इज योर्स। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके जैसे ही हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस चीज में पूरी टीम, मेरी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करेगी आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। लेकिन आपका एक काम होगा, और वो सिंपल सा है, टाइम से पढ़ना, टारगेट्स पूरे करना, डन करना, उसके बाद आराम से चिल मारें। सो विद दिस आई वेलकम यू ऑल इन द बैच, एंड आई अगेन थैंक यू for trusting me for this crucial journey of yours. I will do everything in my capacity to assist you, to help you so that you reach your ultimate destination, which is Labasana. Thank you very much. This was Nilesh Kumar Singh.